Now, when we talk about the nuclear chemistry, let's start with some very simple things, very simple things. हमारे पास एक चीज है atom. Atom is a unique neutral constant particle of an element. Unique neutral constant particle of an element. That is termed as an atom. Now, atom is made up of certain other constituent particles. These particles are something like we have a thing called nucleus, and another part is called electron. Nucleus is further made up of two particles, neutron and proton. These two together are termed nucleons. ठीक है? ये हमारे पास दो न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं। अब we have certain properties. Neutron is neutral, proton is positively charged. The mass of the neutron and proton is almost the same, neutron being slightly heavier as compared to proton if measured independently. अब जब हम न्यूक्लियन की बात करते हैं तो अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट नेम्स आते हैं। एक हमारे पास आता है isotopes, then we have isobars, then we have isotones, then we have isodiaphers. हाँ, ये H मत भूल जाना, गड़बड़ हो जाएगी। Okay? So, isotopes. अच्छा, हमारे पास कुछ और टर्म्स होती हैं। एक होती है हमारे पास जिसे कहते हैं एटॉमिक नंबर. Atomic number is the number of protons in the nucleus. That is called the atomic number. Then we have something called the mass number. Mass number is the total number of nucleons an atom has. उसको बोलते हैं mass number. Mass number is always a whole number. Remember, mass number can be zero. Electron का mass number zero होता है. ठीक है? But very obviously, mass number cannot be fractional. Mass number cannot be negative. ठीक है? So mass number is always a whole number. Now, mass number हमने बता दिया. अब इसके साथ एक word होता है atomic mass. Atomic mass is the mass of an atom in comparison to 1/12 of the mass of a carbon atom. Carbon 12 isotope in front. Be very clear. Mass number is a whole number. लेकिन atomic mass in general is not a whole number. Atomic mass का whole number ना होने के दो reason. पहला reason, the atomic mass, the mass of a neutron or a proton in an atom is not necessarily equal to 1/12 the mass of one atom of carbon 12 isotope. एक बात का ख्याल रखना कि mass of a neutron and proton out of the nucleus and in the nucleus are different. They are not same. ठीक है? तो इस वजह से atomic mass is a fractional value. और दूसरा रीजन एटॉमिक मास के फ्रैक्शनल वैल्यू होने का रीजन ये है कि जो एटॉमिक मास हम पीरियोडिक टेबल में रिपोर्ट करते हैं, दैट एटॉमिक मास इज एक्चुअली अ मास एवरेज ऑफ द वेरियस आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट. तो इस वजह से हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है. ठीक है? तो ये हमारे पास चीजें हैं. अब बात आती है व्हाट इज आइसोटोप. आइसोटोप्स आर द एटम्स which have the same atomic number but different mass number. Clear? Isotopes of the elements of an element. Okay. Isotopes are the atoms of the same element. Okay. Clear? That are isotopes. Now we have isobars. Isobars are the species which have the same mass number but different atomic number. आइसोटोप्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है. यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम होता है. Those are called isobars. Now then we have isotones. Isotones are the species which have the same number of neutrons but different number of protons. They are called isotones. ठीक है?
Then we have isodiaphers. ये एक बड़ी मजेदार सी स्पीशीज है. इसमें number of neutron minus number of proton is the same value. Number of neutron minus number of protons can also be written as the mass number, which is generally represented by A, minus twice the atomic number represented by Z. So these are called isodiaphers. Okay? The element, the atoms in which the difference between the number of neutron and proton is same, although the number of neutron and proton are different. A very typical example is lithium, sodium, potassium. These are isodiaphers. ठीक है? तो ये हमने isodiaphers लिखा है. अब having talked about these, कुछ एक simple facts about the nucleus. Nucleus की एक बहुत ही typical property है जो काफी confusing है. और वो ये, apart from protium, that is the hydrogen nucleus, जिसको हम nucleus ही नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है. Apart from hydrogen nucleus, अगर हम किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस की डेंसिटी की बात करते हैं, we find that the density of the nucleus is a constant, irrespective of the element. ठीक है? So हमारे पास आ जाता है density, which is equal to mass by volume for all nucleus is a constant. ठीक है? Now जो मास है, अगर मैं एक मोल लेके चलूं, प्रोटीन को न्यूक्लियस कहते हैं कहना नहीं चाहिए. लेते हैं कि नहीं? कहना नहीं चाहिए, क्योंकि आइडियली जब भी हम किसी न्यूक्लियर साइज की बात करते हैं ना, तो हम प्रोटीन की न्यूक्लियर साइज की बात नहीं करते. फाइन, क्योंकि बहुत सिंपली स्पीकिंग ये जो पार्टिकल्स हैं, इनकी कोई भी डायमेंशन, सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं, इनकी डायमेंशन निकालना पॉसिबल नहीं होता. इनके अंदर हमेशा अनसर्टेनिटी होती है, तो फिर उसको नहीं निकाल पाए. तो यहाँ पे जब हम डेंसिटी की बात करते हैं, तो अगर हम 1 मोल की बात करें, तो मास कैन बी टेकन एज द एटॉमिक मास. ठीक है? So it turns out to be that radius of the nucleus is proportional to the atomic mass 1/3. Constant है ना? Fine. So it seems to be that radius of the nucleus is equal to r naught a raised to power 1/3. अभी जो r naught की वैल्यू है, ये एक डाइसी वैल्यू है. कारण ये है कि r naught न्यूक्लियस का भी डायमेंशन एग्जैक्ट नहीं निकाली जा सकती. तो इसलिए r naught is mostly the distance of closest approach, which is very much dependent on the speed of the projectile, most often the alpha particle. तो alpha particle जितना पास न्यूक्लियस के पहुंच सकता है, that is termed as the distance of closest approach, and that is considered the size of the nucleus. इसकी वैल्यू 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻⁻15 तक कुछ भी मिल जाती है. तो हर किताब के अंदर ये वैल्यू अलग है, तो इसलिए मैं इसकी वैल्यू मेंशन नहीं कर रहा. We just consider r naught. अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो r naught की वैल्यू मेंशन करो. ठीक है? So you are more bothered about this formula that r is equal to r naught a raised to power 1/3. अब ये तो चीजें समझ में आती हैं, ये तो ऑब्जर्व है, समझ में क्या आता है. अब क्वेश्चन ये आता है कि what holds the nucleus together? What holds the nucleus together? We perfectly know that in this universe there are 4 fundamental forces. One is gravity, other one is magnetic,
The third one is electrostatic. And the fourth one, which we are supposed to discuss now, is the strong nuclear. ठीक है? अब before we get along anywhere, हम कुछ actual observations की बात करें, कुछ actual observation समझने की कोशिश करें। अब जैसे कि what are the properties of this force? The very first property जो हमें बहुत clearly दिखती है, it is extremely short range. Extremely short range. It works only in the nucleus. It does not affect even the electrons surrounding the nucleus. It does not affect any other nucleus in the bond. कोई फर्क नहीं, कोई असर ही नहीं है, कोई पार्ट ही नहीं। Electrostatic, gravitational and magnetic, all three forces are long range forces. It is a short range force, extremely short range. ठीक है? दूसरी प्रॉपर्टी, does not depend on charge. Always attract. प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी है, एंड ऑलवेज अट्रैक्ट। ठीक है? और अब एक बड़ी मजेदार सी प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट है। सिंपल सा फैक्ट है। इससे क्या इंफरेंस निकलता है? इससे इंफरेंस ये निकलती है कि न्यूक्लियर बॉन्ड लेंथ कांस्टेंट। न्यूक्लियर बॉन्ड लेंथ कांस्टेंट। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसकी जो लेंथ है वो कांस्टेंट है रिस्पेक्टिव ऑफ द न्यूक्लियस। जैसे आप एक न्यूक्लियॉन ऐड करते हो तो इंक्रीज इन वॉल्यूम इज सेम एवरी टाइम। तो इसीलिए आप एक फिक्स्ड वॉल्यूम और एक फिक्स्ड मास ऐड कर रहे हो, कभी तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी। और वो क्यों हो रहा है फिक्स्ड? बॉन्ड लेंथ, यानी कि इतने डिस्टेंस पे एक न्यूक्लियॉन है, दूसरा न्यूक्लियॉन डालोगे वो इतने डिस्टेंस पे आएगा, फिर इतने डिस्टेंस पे आएगा, फिर इतने डिस्टेंस पे आएगा। मतलब कि जितने न्यूक्लियॉन आप ऐड करते चले जा रहे हो, वॉल्यूम भी उसी के साथ प्रोपोर्शनली बढ़ती चली जा रही है। बढ़ रही है। कितनी? जितना मास। बॉन्ड लेंथ कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, बॉन्ड बढ़ रही है, जब वॉल्यूम बढ़ रही है तो प्रोग्रेसिव आ रही है। आपने बात समझी मैंने क्या? न्यूक्लियर बॉन्ड लेंथ इज अ कांस्टेंट। आई डिडंट से न्यूक्लियर साइज। यार बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होती है, पूरे मॉलिक्यूल की लेंथ नहीं होती बॉन्ड लेंथ। अब अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं तो हाइड्रोकार्बन में जैसे जैसे मैं हाइड्रोजन ऐड करता चला जाऊंगा, हाइड्रोकार्बन की वॉल्यूम बढ़ती ही चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी ना। तो वॉल्यूम तो बढ़ रही है ना, लेकिन हाइड्रोजन कार्बन की बॉन्ड लेंथ तो हर जगह कांस्टेंट ही है ना। तो जितने मैं CH2 ऐड करता चला जाऊंगा उसी के साथ उसकी वॉल्यूम और मास दोनों बढ़ते चले जाएंगे ना। इसीलिए तो ये होता है कि अगर मैं हायर हाइड्रोकार्बन्स पे चला जाऊं तो हायर हाइड्रोकार्बन्स की डेंसिटी कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि CH2 जितना ऐड किया, जितना मास ऐड किया, उतनी ही वॉल्यूम भी ऐड कर दी, तो डेंसिटी कांस्टेंट हो गई। वही कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पर। ये समझा करो, लैंग्वेज समझा करो, तो अड़ जाते हो। बॉन्ड लेंथ और साइज ऑफ द मॉलिक्यूल अलग अलग चीजें हैं। इसी तरीके से न्यूक्लियर बॉन्ड लेंथ और साइज ऑफ द न्यूक्लियस दो अलग अलग चीजें हैं। अगर मैं ये बोलता हूँ कि बॉन्ड लेंथ कांस्टेंट है तो उसका मतलब ये आता है कि न्यूक्लियर साइज वेरिएबल है। ठीक है? अगर मैं ये बोल देता हूँ न्यूक्लियर साइज कांस्टेंट है तो बॉन्ड लेंथ वेरिएबल हो जाती है। फिर उसमें ये मतलब आ जाता है कि सेम बॉक्स के अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन डालते हो डालते चले जाओ। जब ज्यादा न्यूक्लियॉन डालोगे तो लेंथ साइज उसका बॉन्ड लेंथ तो छोटी होती जाएगी ना।
इससे आउटकम आता है कि डेंसिटी कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है, उससे ये पता चलता है कि बॉन्ड लेंथ कांस्टेंट है। ठीक है, देखो मैं ये टर्मिनोलॉजीज में इसलिए यूज कर रहा हूं कि ये टर्मिनोलॉजी से आप रिलेट कर पाते हो। ठीक है, व्हाट आई शुड टेक्निकली बोलूं, द इंटरन्यूक्लियन डिस्टेंस इज अ कांस्टेंट। चॉइस इज योर्स। ठीक है, तो आई शुड से फिक्स्ड, यहां पे टेक्निकल बोल देता हूं, इंटरन्यूक्लियन डिस्टेंस। मतलब ये कि ये जो फोर्स है, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इट वर्क्स ओनली एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, ना तो इससे छोटे पे वर्क करता है ना इससे ज्यादा पे वर्क करता है। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उल्टा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर ये है कि जितना पास होता जाएगा ये उतना बढ़ता चला जाएगा, और जितना दूर होता जाएगा उतना कम होता जाएगा। इस पर्टिकुलर फोर्स की प्रॉब्लम ये है, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वर्क कर रहा है, ना इससे पास पे वर्क करेगा ना इससे दूर पे वर्क करेगा। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एटलीस्ट 100 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एटलीस्ट 100 टाइम्स है। उसका सिंपल सा रीजन मैं आपको बता देता हूं। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट में हेवीएस्ट एलिमेंट इज यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम इज द हेवीएस्ट एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 90, उसके अंदर 92 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, एनीबॉडी रिमेंबर्स द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238? क्वेश्चन दिया था आपको क्लास में काइनेटिक्स के अंदर, हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 की हाफ लाइफ 4.5 बिलियन ईयर्स है। ठीक है, और हम चिल्लाते हैं यूरेनियम 235 फिशनेबल मटेरियल, रिएक्टिव, रेडियोएक्टिव, दिस एंड दैट। द हाफ लाइफ इज 1 बिलियन ईयर्स। 1 बिलियन ईयर्स। ठीक है, मतलब ये कि अगर यहां पे 1 ग्राम यूरेनियम है तो उसको 0.5 ग्राम होने में यूरेनियम 238 को 4.5 बिलियन ईयर्स लगेंगे। क्लियर? समझ नहीं पा रहा? Would you call it unstable? हम बोलते हैं उसको अनस्टेबल क्योंकि वो रेडियोएक्टिव है। Yes, it is radioactive. But considering this half life, do you think it is unstable? अरे यार 4.5 बिलियन ईयर्स में तो पूरा समुद्र इवापोरेट हो जाएगा ना। इतनी बार तो इवापोरेट हो ही चुका होगा, जो बारिश होती है इवापोरेशन होता, तो आई थिंक पूरे ओशियंस की जो वॉल्यूम है वो पूरी इवापोरेट एक बार तो हो चुकी होगी। तो आई थिंक इस पॉइंट वो 1 ग्राम यूरेनियम से तो समुद्र ज्यादा अनस्टेबल है। हाउ डू वी कॉल दिस एज अनस्टेबल? अब सोचो, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को होल्ड करने वाला फोर्स के न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, इसे ओवरकम करने में 50% ओवरकम करने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को 4.5 बिलियन ईयर्स लगते हैं। तो सोचो ये उससे कितना स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो यूरेनियम के अंदर भी रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम नहीं कर पाता। अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करता है। बस बात सिर्फ इतनी है कि यूरेनियम तक पहुंचते पहुंचते कुछ कंपेरेबल हो जाता, कुछ कंपेरेबल। तो इस वजह से अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, और उस पॉसिबिलिटी को आते आते प्रोबेबिलिटी में बनते बनते 4.5 बिलियन ईयर्स लगते हैं। तो उसी से पता चल जाता है कितना स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम उसके नीचे वाले एलिमेंट्स की बात करते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए ऑक्सीजन 16 की बात कर लेता हूं, या मैं कार्बन 12 की बात कर लेता हूं, कार्बन 13 की बात कर लेता हूं, प्रोटियम के बाद ड्यूट्रियम की बात कर लेता हूं, ठीक है, क्लोरीन 35 37 की बात कर लेता हूं, तो भैया उसमें तो कभी भी ओवरकम नहीं कर पाता। उनकी तो हाफ लाइफ नाम की कोई चीज ही नहीं है।
तो इसका मतलब क्या होगा, एटलीस्ट 100 टाइम्स तो होगा। सर ये ओवरकम कैसे रहता है? ओवरकम कैसे रहता है? वाटर का इवेपोरेशन होता है, सर वाटर का इवेपोरेशन होता है, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, होता है या नहीं होता? क्यों होता है? बोल यार, अब वही बात होती ना, पता तुम्हें इवेपोरेशन नहीं है, पूछ रेडियो एक्टिविटी रहे हो। सुन, रेडियो एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने का एक सिंपल तरीका है, मुझे नहीं पता वो तरीका सही है या नहीं, लेकिन अपीलिंग लगता है। तरीका ये है, जैसे हम इवेपोरेशन की बात करते हैं, रेडियो एक्टिविटी इज वेरी मच कंपेयर्ड टू इवेपोरेशन। ठीक है, हमारे पास ये लिक्विड का सरफेस है, ठीक है, लिक्विड के अंदर 3 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। आई थिंक आई टोल्ड यू, गैसियस स्टेट हमने जब किया था, आई टोल्ड यू 3 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसमें से एक मॉलिक्यूल है ऑन द सरफेस, एक मॉलिक्यूल है ऑन द वॉल, एक मॉलिक्यूल है ऑन नियर द कंटेनर। न्यूक्लियस को भी कंसीडर एज अ ड्रॉप ऑफ वाटर, तो उसमें कोई कंटेनर नहीं है, तो सिर्फ 2 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, एक ऑन द सरफेस, एक इन द बल्ब। जो बल्ब के अंदर वाला पार्टिकल है उसको चारों तरफ से घेर रखा गया है, उसकी एनर्जी सबसे कम है, बट ऑन द सरफेस एनर्जी ज्यादा है क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स पूरे नहीं है। ठीक है, अब जिस तरीके से एक लिक्विड की ड्रॉप के अंदर पार्टिकल्स कांस्टेंट मोशन में है, बिल्कुल उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर भी जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं वो कांस्टेंट मोशन में है। ठीक है, एंड एज लाइक अ लिक्विड, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स की एनर्जी सेम नहीं है, उसी तरीके से न्यूक्लियस के सारे पार्टिकल्स की एनर्जी भी सेम नहीं है, किसी की ज्यादा है, किसी की कम है। So they keep on moving and they keep on transferring energy from one to the other. Fine. Now, if a nucleon passes the energy to the nucleon on the surface sufficient to break the nuclear bonds, then this is going to move out. This is actually, analogically speaking, evaporate from the surface, and that will be radioactive. ठीक है? ये एक acceptable explanation है, सही है, इसकी गारंटी मैं नहीं दे रहा, बट आई बिलीव कुछ आइडिया लग जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। सो दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट द रेडियोएक्टिव। समझ आई बात? सर ये नॉन स्पॉन्टेनियस इट अगर स्पॉन्टेनियस होता तो वो स्पीशी एक बार इनिशिएट होने के बाद बचती थोड़ी ना। जिस किसी के अंदर भी रेडियो एक्टिविटी स्पॉन्टेनियस है, क्या वो स्पीशी एग्जिस्ट करती है? कर सकेगी? तो अब एक बार बताओ, वाटर का इवेपोरेशन स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। सोचिए देखिए, evaporation of water is spontaneous. अगर मैं 100 डिग्री से कम पर evaporation की बात करूं तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो 1 से ज्यादा आएगा, कम आएगा? डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? यार बात बता, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस ई डेल्टा एस। ठीक है, वाटर के इवेपोरेशन का डेल्टा एच पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। ठीक है ना? इक्विलिब्रियम टेंपरेचर क्या है ये? अगर ये इक्विलिब्रियम टेंपरेचर होगा तो इक्विलिब्रियम टेंपरेचर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर 373 केल्विन से ज्यादा है, ये टेम्परेचर 373 केल्विन से कम है, तो जो डेल्टा एस की वैल्यू वो तो कांस्टेंट है। तो ये जो मैग्नीट्यूड है, क्या वो मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा होगा? तो क्या डेल्टा जी पॉजिटिव नेगेटिव आएगा? तो वाटर का इवेपोरेशन बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, इज इट स्पॉन्टेनियस? क्या नहीं हुआ? कुछ क्या नहीं हुआ? तो आपको लगता है रेडियो एक्टिविटी इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? इफ इट हैड बीन स्पॉन्टेनियस, आपको लगता है वहां पे
थोड़े थोड़े पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं। स्पॉन्टेनियस पता है स्पॉन्टेनियस से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता चलता है, और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये तो पता चलता है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से ज़्यादा होगा या कम, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और अगर एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट ज़्यादा होगा या कम होगा, उससे ये तो पता चल जाएगा ना कि पॉसिबिलिटी है उसकी एग्जिस्ट करने की या नहीं। 100 डिग्री से ऊपर क्या पानी एग्जिस्ट करेगा? डेल्टा जी थोड़ा सा ही नेगेटिव है ना, 100 डिग्री के ऊपर डेल्टा जी थोड़ा सा ही नेगेटिव है, तो पानी एग्जिस्ट करता है। जिस किसी भी सब्सटेंस के अंदर ये डेल्टा जी ऑफ रेडियो एक्टिविटी नेगेटिव हो गया ना, वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं बना पाते हम 192 के ऊपर 94 के ऊपर एलिमेंट्स? 105 एलिमेंट बना देते हैं, 118 कुछ एटम बनाते हैं, बनते और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिस किसी भी एलिमेंट का रेडियो एक्टिविटी स्पॉन्टेनियस हो गई वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन हम यही देते हैं, द स्पॉन्टेनियस emission of radiation from the nucleus of an unstable element is termed as radioactivity. Spontaneous यहाँ पर है without any external stimulus, ठीक है, समझ आई बात? फाइन। तो इसमें अब हम ये बात मैं फिर से वही बात बोल रहा हूं, that this nuclear force drastically overcomes the electrostatic repulsive force and therefore it holds it together, ठीक है, clear? तो हमारे पास इसमें we find that naturally we are able to get the elements up to 92 uranium 92 तक है, ठीक है। उसके आगे 93 बन जाता है प्लूटोनियम, ठीक है, लेकिन उसके बियॉन्ड वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते, बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव है, बहुत ही अनस्टेबल, ठीक है, समझ आ रही है? तो इट इज नियरली 100 टाइम्स ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूं दीज आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। अब अनस्टेबिलिटी होता है उसमें, तो सारे पार्टिकल्स उतने इंक्रीज होंगे ना, मतलब 1 यूनिट बढ़ाया एटॉमिक नंबर तो उतनी प्रोटॉन इंक्रीज होगा, उतनी इलेक्ट्रॉन की तो बात हम करेंगे, भूल जाओ न्यूक्लियॉन्स की बात। हाँ, न्यूक्लियर फोर्स तो 100 टाइम्स मतलब अच्छे है ना, तो सही। और 92 पे 4.5 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं उसे, तो एक ही एटॉमिक नंबर बढ़ाने से अनस्टेबल इतना क्यों ज़्यादा कि वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता? सोचने वाली बात है ना, ठीक है। और मजेदार बात, कार्बन 12 वेरी स्टेबल, कार्बन 13 लेस अबंडेंट बट नॉट रेडियोएक्टिव, कार्बन 14 भाई रेडियोएक्टिव है यार, यहाँ तो सही प्रोटॉन है ना। हाइड्रोजन, प्रोटियम एक प्रोटॉन, ड्यूट्रियम एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, प्रोटियम अबंडेंट है ड्यूट्रियम से, प्रोटियम में तो न्यूक्लियर फोर्स ही नहीं है, ड्यूट्रियम में तो फिर न्यूक्लियर फोर्स है। ट्रिटियम 2 न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, हाफ लाइफ 8.3 इयर्स, वेरी रेडियोएक्टिव। तो फंस गए यार ये तो। यूरेनियम 238 4.5 बिलियन इयर्स, 3 न्यूट्रॉन कम किए, 235 1 बिलियन इयर्स, सीधा 4.5 टाइम्स कम हो गई। क्या यार मजे लेते हैं नेचर भी, है ना। नेचर के साथ प्रॉब्लम ये है, जहां हमें लगता है ना कि वी आर सॉल्विंग अ मिस्ट्री, द मोमेंट वी आर नियरिंग द कंप्लीशन ऑफ द मिस्ट्री, नेचर एक छोटा सा पेज हुआ टिंग, लो संभाल लो मिस्ट्री, एंड सब पकड़े बैठ जाते हैं यार, सारी चीजें यहां तक पहुंचे और ये नहीं देखा, एक छोटा सा पेज स्टार्ट आ गया। ये होता है नेचर के साथ।
इसलिए मैंने जो बोला वो सही है, लेकिन आई थिंक इट्स नॉट दिस मच, इट्स मोर देन दिस. तो लेट्स गेट अलोंग विद. देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस मिस्ट्री, आई कैन नॉट, नोबडी हैज सॉल्व्ड इट. और न्यूक्लियर फोर्सेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि देखो जब केमिकल रिएक्शंस की बात करते हो तो केमिकल रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में हो जाते हैं. क्या हुआ? अरे कुछ तो हुआ था. भागवतम पढ़नी पड़ेगी बोलना. भागवतम नहीं, भगवत गीता पढ़ लो वही काफी है. मतलब सर उसमें उपनिषद में साइंटिफिक है, भागवतम में तो मोरल वैल्यूज का आता है, उसमें ये सब नहीं है, उसमें म्यूजिक. हाँ तो उपनिषद पढ़ लो, भागवतम को क्यों पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, उसमें भी मिल जाएगा. ये हाँ ये है. हाँ न्यूक्लियर केमिस्ट्री है उसमें. क्या हुआ? We do have nuclear chemistry. और just for your information, geography को हिंदी में भूगोल कहा जाता है. Even before the people were debating about whether the earth is round or flat, Indian scientists were talking it भूगोल. ठीक है? क्या? आपको पता है एक वर्ड और होता है भूगोल. भूगोल. The actual word on which Google was based. Google. One with 100 zeros. That's Google. Okay, खैर, we are getting along with the nuclear chemistry. यहाँ पे ही रहते हैं, वरना कहावतें तो कहानियाँ तो बहुत हो जाएंगी. Now, देखो, मैं इस समय न्यूक्लियर फोर्सेस की बात कर रहा हूँ कि what are the properties? हम properties की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टीज हमारे सामने है, ठीक है. और जैसे कि ये सोचा जा रहा है 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या हो जाता है, ठीक है. इससे एक बात और समझ में आ रही है, वो ये कि जो न्यूक्लियर फोर्स है दैट एक्ट्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स एडजेसेंट टू ईच अदर, इट डज नॉट अफेक्ट ऑल द न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस. देखो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है, तो जैसे ही मैं न्यूक्लियॉन एक और ऐड करता तो 100 टाइम्स ऐड होना चाहिए ना, वो नहीं ऐड होगा. दो न्यूक्लियॉन के बीच का फोर्स रिमेन्स द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा नहीं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर अगर एक भी पार्टिकल आप ऐड करते हो तो वो पार्टिकल सारे पार्टिकल्स को रिपेल करता है और सारे पार्टिकल से रिपेल होता है, जबकि यहां पे ऐसा नहीं होता. इसीलिए जैसे जैसे हम नंबर बढ़ाते चले जा रहे हैं प्रोटॉन्स का, न्यूक्लियस अनस्टेबल होता चला जा रहा है, ठीक है. इन सारी प्रॉपर्टीज से एक बात तो बहुत ज्यादा समझ में आ जाती है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है. आप सब इट मस्ट बी समथिंग डिफरेंट. अच्छा मैं अब एक वर्ड बोल रहा हूं, उसे ध्यान से सुनना और सोचना. न्यूक्लियर फोर्स इज अ कोवलेंट बॉन्ड. Nuclear force is a covalent bond. देखो प्रॉपर्टी सामने लिखी हुई है, कंपेयर. थिंक ओवर अ हाइड्रोकार्बन चेन. थिंक ओवर हाइड्रोकार्बन चेन. एक बात शायद तुम्हें पता हो, शायद तुम्हें ना पता हो. डीजल एंड पेट्रोल, heard of these two? Which one has longer hydrocarbon chain? डीजल और पेट्रोल, किसकी हाइड्रोकार्बन चेन लंबी है? कौन सा ज्यादा वोलेटाइल है? पेट्रोल. तो इसका मतलब है हाइड्रोकार्बन चेन पेट्रोल की छोटी होगी ना, वीक मेटाबॉल फोर्सेस ही तो हैं. हाइड्रोकार्बन है ना, वीक मेटाबॉल फोर्सेस है ना, तो पेट्रोल इज मोर वोलेटाइल. दैट मींस पेट्रोल वुड बी हैविंग अ लोअर हाइड्रोकार्बन चेन लेंथ, ठीक है. हर्ड ऑफ मीथेन.
मीथेन में कार्बन चेन सबसे छोटी है, एलपीजी थोड़ी बड़ी है, पेट्रोल उससे बड़ी है, ठीक है, डीजल की और भी बड़ी है, केरोसिन की उससे भी बड़ी है, ठीक है, फाइन, कोई डाउट? अच्छा एक बात बताओ, हाइड्रोजन, मीथेन, पेट्रोल, एलपीजी, पेट्रोल और डीजल, इन सब में सबसे ज्यादा इग्निशन टेम्परेचर किसका है? हाइड्रोजन, मीथेन, एलपीजी, पेट्रोल दैट इज गैसोलीन, डीजल एंड लेट्स से केरोसिन, इसमें सबसे ज्यादा इग्निशन टेम्परेचर किसका है और सबसे कम किसका है? ऑब्वियसली का सबसे ज्यादा और सबसे कम हाइड्रोजन। क्या? मीथेन का ज़्यादा, मीथेन का, पेट्रोल का, पेट्रोल का सबसे कम। हाइड्रोजन का इग्निशन टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। हाइड्रोजन इज एक्चुअली स्पीकिंग इनर्ट। यस यस, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, ये फैक्ट है। Yes, it is. You cannot use hydrogen in normal petrol engines. ठीक है? और दूसरी बात, केरोसिन has the minimum ignition temperature. कार्बन चेन लेंथ जितनी ज्यादा होती चली जाती है, इग्निशन टेम्परेचर उतना ही कम होता चला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इग्निशन टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। आपको पता नहीं, ये शायद पता नहीं है, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता। हाँ, आपको कुछ भी नहीं पता, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता। डीजल सिर्फ कंप्रेशन से जल जाता है, और पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है, मतलब उसको हायर टेम्परेचर चाहिए। सीएनजी किट जो लगती है उसके अंदर उस स्पार्क की इंटेंसिटी को बढ़ाया जाता है, क्योंकि मीथेन का जो स्पार्किंग पॉइंट है, इग्निशन पॉइंट है, वो पेट्रोल से ज्यादा है। और जितने भी सीएनजी की वो जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना, वो इसलिए नहीं होते कि सीएनजी में आग लग गई, वो इसलिए होते हैं कि अंडर प्रेशर भरा था, वो सिलेंडर फॉल्टी था, फट गया। फटने के बाद अगर कहीं पे कोई स्पार्क वगैरह हो तो आग लगती है, अदरवाइज नहीं। तो अब सोचो, अगर मैं उससे न्यूक्लियस को रिलेट करूं तो एग्जैक्ट रिलेशन हो जाता है। सीधा सीधा रिलेट हो गया ना। Density constant, bond length constant. As the chain length increases, stability decreases. ठीक है? Always attractive. Electrostatic. किन्हीं भी दो के बीच में बना दो, always attractive. Does not depend on charge. Short range. third point था, as chain length increase, ये नहीं सर count करा, chain length increase होने पे stability decrease हो जाता है। सर वो यूरेनियम 230 और 235 में तो कम किया नहीं, बेटा हमने एटम को हो सकता है ब्रांचिंग कर दी हो। तो उसके बारे में कुछ और नहीं। देखो, एक पर्टिकुलर लिमिट के आगे हम बना ही नहीं पाते। नहीं सर, वो आगे की नहीं देखता। देखो वो तो आइसोटोप्स है ना, हाँ, तो उसमें कुछ ना कुछ बात हो रही है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन अगर हम ऑन एन एवरेज देखते चले जाएं तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब ये भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन के अंदर है कि ब्रांचिंग आल्सो मैटर्स। सर कार्बन के जो आइसोटोप है इसकी 8 यार कार्बन के आइसोटोप की बात मत कर, देख जब रिलेशन पे आते हो ना तुम ऐसे छलांग मत मारा करो, एक सीधी लकीर पे चलो। कंपैरिजन किसका? सर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कार्बन के आइसोटोप, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। सर जिसका हाफ लाइफ 8.6 इयर्स। अरे वो हाइड्रोजन का है, कार्बन का नहीं है।
तो सर उसके और यूरेनियम 238 में तो लेंथ इंक्रीज हुई है ना। हाँ तो वो तो अनस्टेबल हो गया, हाइड्रोजन अनस्टेबल हो गया, यूरेनियम में स्टेबल हो गया। आपने बताया ना चेन लेंथ इंक्रीज होने पे स्टेबिलिटी डिक्रीज होती तो चेन लेंथ इंक्रीज होने पे स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे एक वेरिएशन आ रहा है ना, वेरिएशन आ रहा है ना। देख सुन, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। पर अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, हाइड्रोजन हीलियम वगैरह से शुरू करता हूँ, तो स्टेबिलिटी के अंदर जो आगे बहुत लंबी चेन लेंथ बढ़ती चली जा रही है उसमें स्टेबिलिटी कम होती जा रही है। सबसे कब? बड़ी चेंज जो यूरेनियम की होगी ना, हाँ तो मैं यूरेनियम 235 यूरेनियम 238 को कंपेयर कहाँ कर रहा हूँ? उससे क्यों नहीं कर सकते? अच्छा सुन, एक मिनट सुन, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जर्वेशंस एंड वी आर हैविंग ऑब्जर्वेशंस, आई एम टेलिंग यू द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? रादर देन आस्किंग मी व्हाई डोंट यू ट्राई टू गिव द रीजन। ये डिबेट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी आर नॉट डिबेटिंग। और जैसे कि मैं एक बात बताने की कोशिश कर रहा था वो ये कि जब हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस कैन बी डन इन अ टेस्ट ट्यूब, दे आर डन इन अ टेस्ट ट्यूब, इट्स easy to do, we are able to do billions of chemical reactions, but how many nuclear reactions are we able to do? How do we study them? Huge energy is required to do the nuclear reaction, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कोवेलेंट बॉन्ड के या आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स। तो जब न्यूक्लियर फोर्सेस को तोड़ने की बात आती है तो एक्टिवेशन एनर्जी में दिमाग हिल जाता है, लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर की जरूरत पड़ जाती है। सर हमने उसे कोवेलेंट बॉन्ड से तो कंपेयर कर दिया ना। कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। सर थर्ड प्रॉपर्टी हमने कंपेयर की, वो तो ये की ना कि नहीं हो रही, मत मान खत्म यार, मैं क्यों डिबेट करूं? Why should I debate about it? I am trying to get an answer, you are creating a question. कुछ समझे तो, जैसे ही समझने लगते हैं तो ब्लॉक लगा दो, तो ना रुक जाइए पे। अरे ब्लॉक ठीक है यार, एक ब्लॉक है, मैंने ये कब कहा कि इट इज एग्जैक्टली कोवेलेंट बॉन्ड? इट सीम्स टू बी अ कोवेलेंट बॉन्ड, प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं, मैक्सिमम कर रही, एक नहीं कर रही। वैसे मैं उसको भी मैच करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे पता है वो मैच करेगी, पर अगर नहीं कर रही तो लेट्स मूव अराउंड इट फॉर द टाइम बीइंग, बाकी तो समझें, ठीक है? अब यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 में क्या फर्क है? डू यू नो दैट? आपको पता है? एक मिनट, आप अगर एनालॉजी की बात कर रहे हो, डू यू नो दैट वी हैव समथिंग कॉल्ड आइसोऑक्टेन एंड वी हैव एन ऑक्टेन। ऑक्टेन का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, आइसोऑक्टेन का बहुत ज्यादा। वो दोनों के दोनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, सेम मोलर मास। कार्बन की चेन में जब ब्रांचिंग जितनी बढ़ती चली जाती है, इग्निशन टेम्परेचर बढ़ता है। तो मेरे लिए तो बहुत आसान है बोलना, ब्रांचिंग हो जाती होगी, ठीक है? या हो सकता है यूरेनियम 238 में ब्रांचिंग है, यूरेनियम 235 लीनियर है। हेप्टेन 7 मेंबर्ड, ऑक्टेन 8 मेंबर्ड, आइसोऑक्टेन इज ब्रांच स्ट्रक्चर। आइसोऑक्टेन का जो इग्निशन टेम्परेचर है एन हेप्टेन से ज्यादा है। फिर तो एनालॉजी बनाते हैं तो बहुत आसान है ना, बता दिया तो तुम्हारा भी डाउट क्लियर हो गया। पर कुछ नॉर्मल चीजें हम देखते चले जा रहे हैं, उन नॉर्मल चीजों से रिलेट तो करें कम से कम। अब ये देखो ना, बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज मैच कर रही है ना कोवेलेंट बॉन्ड से। तो अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड से मैच कर रही है तो लेट अस, बिफोर वी गेट along with the nuclear force, let us understand what the covalent bond is. Covalent bond is a bond formed due to the constant exchange of electron between the two nucleus. That's the covalent bond. Definition समझ में आई? Covalent bond is formed due to the rapid exchange of electrons between the nuclei. ठीक है? तो यहां पर दो न्यूक्लियस हैं
इनसे ये आपस में कैच एंड कैच खेल रहे हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन उछालते हैं, वो उसको वो पकड़ता है, वहां से वो इलेक्ट्रॉन उछालते हैं, ये पकड़ता है। एंड टू हैव अ प्रॉपर मूवमेंट दे रिमेन एट अ सर्टेन डिस्टेंस, क्योंकि इससे ज्यादा में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज मुश्किल हो जाएगा, इससे पास में एक्सचेंज मुश्किल हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में वो बैठे रहते हैं जिससे कि एक्सचेंज प्रॉपर होता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियॉन्स है इनके बीच में भी एक पार्टिकल का एक्सचेंज हो रहा है, इनके बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि न्यूक्लियर फोर्स is much stronger than a covalent bond. So very obviously the particle being exchanged between the nucleons would be much heavier than the electron. Okay? Now, a theoretical physicist, Hideki Yukawa, suggested a particle. He called this particle a pi meson. Meso is intermediate. ठीक है? तो this particle does not have a permanent existence. This has an intermediate existence. Clear? Meson दो तरह के होते हैं, एक pi meson, एक mu meson. Mu mesons are formed when the cosmic radiations strike the upper atmosphere. Then the mu mesons are created by the cosmic radiations. उनको mu meson कहते हैं. These pi mesons were considered to be present inside the nucleus. The pi mesons, he predicted three kinds of pi mesons: pi positive, pi negative, and pi neutral. ठीक है? He said that pi positive and pi negative have the same mass, which is nearly 274 times of electron. ठीक है? ये जो values मैं लिख रहा हूँ, these are calculated values by the attractive force and all, उन सारे के सारे considerations को लेकर इन values को calculate किया गया। ठीक है? While the pi neutral is a little lighter, it is around 265 times of electrons. देखो ये जो values है वो अलग-अलग किताबों में different मिल सकती हैं, but इतना ध्यान रखना कि pi neutral is slightly lighter as compared to pi positive and pi negative. ठीक है? Now these are the particles which are supposed to be exchanged between the nucleons. Another scientist, his name was C.J. Powell. He studied nuclear reaction by a photographic method and he was able to detect mesons. So the existence of mesons was confirmed. Both the scientists got the Nobel Prizes in the different years. One got it for theoretical prediction, one got it for actual observation. Now, these people, they suggested certain rules of the exchange of mesons. Rules were too simple, very simple. And again, these rules are based on observations. They suggested that while the exchange is taking place of the mesons, the first rule is no nucleon, and mind it, mesons are not nucleons. They have intermediate existence, therefore they are not considered nucleons. No nucleon can ever have a negative charge. Simple सा reason, कभी भी negative nucleon observe नहीं होता. Negative proton कभी observe नहीं होता. तो इस वजह से कभी भी किसी भी न्यूक्लियॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आता. सिंपल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे रूल है ये. ठीक है? और सेकेंड रूल अगेन वेरी सिंपल, नो न्यूक्लियन कैन एवर हैव अ डबल पॉजिटिव चार्ज. बस सिंपल. इन रूल्स के रिस्ट्रिक्शन में आपको जो न्यूक्लियन में एक्सचेंज करवाना है करवा दीजिए. ठीक है? अब देखो न्यूक्लियन का एक्सचेंज कैसे हो सकता है. हमारे पास है एक न्यूट्रॉन और हमारे पास है दूसरा न्यूट्रॉन. ठीक है? लेट अस कंसीडर कि एक न्यूट्रॉन से दूसरे न्यूट्रॉन की तरफ एक पाई पॉजिटिव मूव कर गया. अब देखो पाई पॉजिटिव का मास है एंड इट इज सब्सटैंशियल मास 274 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इतना भी कम नहीं है. ठीक है?
तो इसीलिए जब ये मूव करेगा तो इसके मास में और इसके मास में चेंज आएगा, बट डोंट स्टिक टू इट, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियन का मास होता है वो इंडिपेंडेंट न्यूक्लियन के मास से डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे मास का एक्सचेंज हो रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां से ये न्यूक्लियन में से ये मेसॉन निकला और यहां पहुंचा, जैसे ही यहां पहुंचेगा दिस इज गोइंग टू बिकम पॉजिटिव, दैट मींस इट्स गोइंग टू बिकम अ प्रोटॉन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहां से पॉजिटिव निकलते ही ये नेगेटिव हो जाएगा, सो दिस काइंड ऑफ अ मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो दो न्यूट्रॉन के बीच में पाई पॉजिटिव का एक्सचेंज नहीं हो सकता। इन द सेम मैनर लेट्स टॉक अबाउट पाई नेगेटिव। यहां से पाई नेगेटिव निकला, ये पॉजिटिव हो गया, एक्सेप्टेड, लेकिन यहां पे पाई नेगेटिव पहुंचा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, दैट्स नॉट एक्सेप्टेड। यानी कि दो न्यूट्रॉन के बीच में पाई नेगेटिव का एक्सचेंज भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है दो न्यूट्रॉन के बीच में पाई न्यूट्रल का ही एक्सचेंज हो सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है, let's talk about the two protons. पाई पॉजिटिव, यहां से पाई पॉजिटिव निकलते ही न्यूट्रल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहां पे पाई पॉजिटिव पहुंचते ही डबल पॉजिटिव हो जाएगा, नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, पाई नेगेटिव, यहां पे पाई नेगेटिव पहुंचेगा ये न्यूट्रल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहां से पाई नेगेटिव निकलते ही डबल पॉजिटिव हो जाएगा, नॉट एक्सेप्टेड। तो दो प्रोटॉन के अंदर सिर्फ पाई न्यूट्रल का एक्सचेंज। Fine. Now, let's talk about a neutron and a proton. ठीक है? न्यूट्रॉन में से पाई नेगेटिव निकला, न्यूट्रॉन में से पाई नेगेटिव निकला, ये पॉजिटिव हो गया, एक्सेप्टेड। पाई नेगेटिव इसमें चला गया, ये न्यूट्रल हो गया, एक्सेप्टेड। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में पाई नेगेटिव का एक्सचेंज हो सकता है। और मजेदार बात ये है कि पाई नेगेटिव यहां से यहां आया, फिर पाई नेगेटिव यहां से यहां गया, क्योंकि नेक्स्ट इंस्टेंस में ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन हो गया, इससे पाई नेगेटिव वापस जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में एक रैपिड एक्सचेंज ऑफ पाई नेगेटिव होता चला जाएगा। ठीक है, इन द सेम मैनर देयर वुड बी एन एक्सचेंज ऑफ पाई पॉजिटिव इन दिस डायरेक्शन। तो यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में पाई नेगेटिव का एक्सचेंज हो सकता है या पाई पॉजिटिव का एक्सचेंज हो सकता है। बी वेरी क्लियर, हम यहां पे ट्रिपल बॉन्ड कंसीडर नहीं कर रहे हैं, एक ही बनेगा। ठीक है, एक टाइम पर दो न्यूक्लियन के बीच में सिर्फ एक ही पार्टिकल का एक्सचेंज होगा, एक से ज्यादा पार्टिकल का एक्सचेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में पाई पॉजिटिव या पाई नेगेटिव का एक्सचेंज हो सकता है, पाई न्यूट्रल तो हो ही सकता है। पर एक बात सोचो, पाई पॉजिटिव और पाई नेगेटिव का मास ज्यादा है पाई न्यूट्रल से, तो पाई पॉजिटिव एंड पाई नेगेटिव आर गोइंग टू गिव अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर्ड टू पाई न्यूट्रल। ठीक है, मे बी अराउंड कितने परसेंट का 10 है ना, 265 में 10 कितना परसेंट हो गया? अराउंड 4%, नियरली 4%। तो यानी कि इसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो बॉन्ड है वो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के बॉन्ड से 4% स्ट्रॉन्ग है, 4%। ये बात समझ में आती है? कोई कंफ्यूजन? सो नाउ, अब ये जो मैंने सामने बोला है, जो अभी भी मैंने बोला, उससे कुछ चीजें काफी अच्छी सी लगने लगती हैं, जैसे कि the number of neutron equal to proton will be quite stable, क्योंकि तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का बॉन्ड बनता चला जाएगा, है ना?
ठीक है। और दूसरी चीज, ये तो समझ में आ गया। सर हाँ एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन है, वो आपस में एक्सचेंज करते बिल्कुल सही। रहेंगे, तो फिर सर ये फिर पूरा एक न्यूक्लियस को कैसे होल्ड करेंगे, वो तो आपस में रह लेगा। नहीं, पूरे न्यूक्लियस को क्यों होल्ड करेगा? न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो आपस में ही पाई एक्सचेंज करेंगे, पाई मैसेज। बेटा जो बॉन्ड बन रहा है ना, वो ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में बन रहा है, कभी इन दोनों के बीच में, कभी इन दोनों के बीच में, कभी इन दोनों के बीच में, कभी इन दोनों की, कभी इन दोनों की, कभी इन दोनों की, यानी कि पूरे के पूरे लैटिस के अंदर ये धड़ाधड़ ये पाई पॉजिटिव या पाई न्यूट्रल जो है भागते चले जा रहे हैं, इधर से इधर, इधर से इधर। कॉन्जुगेशन मान लो यार, कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है, यहाँ पे मेसॉन क्लाउड बना हुआ है, सारे के सारे को एक साथ होल्ड कर रखा है, ठीक है? समझ आ रही है? काइंड ऑफ देखो, हमें या तुम ना अभी भी आस्किंग मोड में हो, क्लियर? इस चैप्टर में आस्किंग मोड वर्क नहीं करेगा ना, क्योंकि ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो सजेशंस है, एक्सप्लेनेशंस नहीं है। आई एम नॉट एट ऑल क्लेमिंग देम टू बी ट्रू। मैंने बोला ये सच है नहीं, मैं ये बोल रहा हूं ऐसा लगता है, और जो चीज लगती है, अगर इसमें कोई डाउट नहीं होता तो फिर मैं ये क्यों बोलता ऐसा लगता है, मैं कहता ऐसा होता है। चेंज योर मोड यार, थोड़ा सा स्टेशन बदलो, आस्किंग स्टेशन से डिस्कसिंग स्टेशन पे आओ, एक्सेप्टेंस पे आओ, सजेशन पे आओ। आस्किंग नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि तुमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछने मुझे नहीं आते होंगे, क्योंकि उनके आंसर ही नहीं है। उसका सिंपल सा रीजन ये है, न्यूक्लियर रिएक्शन करना बहुत मुश्किल है। केमिस्ट्री के अगर रिएक्शंस होंगे, हम कहेंगे ज्यादा डिबेट हो जाएगा, चल यार लैब में चल अभी करके दिखाता हूं, यहां क्या करूंगा? तो इसलिए नहीं चल पाएगा वो आस्किंग। Am I clear? अब ये सजेस्ट करो कि ओके फाइन, थोड़ा सा एक्सेप्टेंस आ रही है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ये बता रहे हैं कि अगर हम 20 एटॉमिक नंबर से नीचे चलते हैं, then in that case the number of neutron and proton equal to each other is the most stable. Most of the species have the equal number of neutron and proton, और कहीं पे अगर, अच्छा एक और मजेदार बात ये कि even number of neutrons and protons are more stable as compared to the odd number. सिर्फ एक्सेप्शन एक है, नाइट्रोजन, जिसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ऑड है। अदरवाइज किसी के अंदर भी दोनों ऑड नहीं है, एटलीस्ट एक तो इवन है। और मोस्ट ऑफन न्यूट्रॉन इज द इवन नंबर, प्रोटॉन ऑड हो सकते हैं, न्यूट्रॉन किसी में भी ऑड नहीं है, नाइट्रोजन इज द एक्सेप्शन। देखो appears to be, देखो हम ऑब्जर्वेशन से इन्फ्लुएंस निकाल रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन से मैं क्या करूं? तो ऑब्जर्वेशन मुझे ये बता रही है कि जो इवन नंबर्ड है दे आर मोर स्टेबल, ठीक है? और जिस केस में दोनों इवन हो जाते हैं वो और भी स्टेबल हो जाते हैं, और इन इवन नंबर्स में भी कुछ ज्यादा स्टेबल है, कुछ कम स्टेबल है। पता है इससे एक और इन्होंने इन्फ्लुएंस निकाला, उन्होंने कहा जिस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन, एंड सर्टेन न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल देन द अदर। क्लियर? Those nuclear configuration which are more stable than the other, they correspond to certain number of proton or a certain number of neutron or a certain number of nucleon. These numbers are termed magic numbers. समझे? Clear? So the species which have the magic number of neutron, proton or nucleon, they are more abundant than the other species. जैसे lead है, lead का एक peculiar system है, lead 82 है एटॉमिक नंबर, मास नंबर 206 है, उसके अंदर a number of proton is also a magic number, total number of nucleon also is a magic number, ठीक है?
तो मोस्ट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी सीरीज 4 रेडियो एक्टिविटी सीरीज है, जिनमें से 3 जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी सीरीज है वो लेड पे आके रुकती है, लेड के आइसोटोप पर, ठीक है। और अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो द हेवीएस्ट एटम, नॉन रेडियो एक्टिव एटम, हेवीएस्ट इज ऑफ बिस्मथ, एटॉमिक नंबर 83, एंड दैट्स नॉट मच, वेरी मच अबंडेंट एक्चुअली स्पीकिंग लेटर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज ऑब्जर्व्ड। देखो जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन बढ़ती जा रही है हम उसके साथ कंसेप्ट जोड़ते चले जा रहे हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्लियर। तो जैसे हमने बात की कि इनिशियली वी फाइंड, अगर मैं मान लीजिए एक ग्राफ सा बनाने की कोशिश करता हूं, अब ग्राफ दो तरीके से बनाया जा सकता है। I can make the graph of neutron with proton, ठीक है, या फिर I can make the graph of neutron by proton with respect to proton, दोनों ग्राफ बना सकता, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं एक प्रोटियम को छोड़ दूं, प्रोटियम में एक प्रोटॉन है, उसको अगर छोड़ दूं तो दिस लाइन ये है आई थिंक एंगल 45 डिग्रीज, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्वल टू 1, ठीक है। यहां पर लेट अस से दिस इज 20, दैट इज कैल्शियम, ठीक है। तो द ग्राफ गोज समथिंग लाइक ये ऑब्जर्व ग्राफ है, ठीक है। और यहां पर लेट्स से दिस वैल्यू इज 1 and this again is 20. So this graph goes like this. अब यूरेनियम 238 को सोचो, यूरेनियम 238 has 92 protons and 146 neutrons, ठीक है। So the value something goes around similar to 1.6 यूरेनियम 238, ठीक है। ये सीरीज ये ग्राफ मैंने कोई रीजन से नहीं बनाई, ऑब्जर्वेशन से। ये जो लाइन है ना, दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ स्टेबिलिटी, और इसके आसपास का रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी। तो जितने भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं दे आर नियर टू दिस लाइन ऑफ स्टेबिलिटी और द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी, दे आर शॉर्ट रीजन है इसके आसपास, सारे आइसोटोप्स इसी रीजन में है, इस रीजन से बहुत दूर नहीं है कोई, और जो इससे बहुत दूर जाता है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो अब एक मजेदार चीज इसमें ऑब्जर्व होती है, वो ये कि for the lighter atoms up till 20 atomic number, the number of neutron and proton similar to 1, that is n by p ratio equal to 1 or similar to it, is stable. जहां पर इस रेशियो से दूर जाता है वो अनस्टेबल हो जाता है। अब जैसे हाइड्रोजन देखो, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम स्टेबल है, ट्रिटियम अनस्टेबल है, कार्बन 12 स्टेबल है, 13 स्टेबल है, 14 अनस्टेबल हो गया, नाइट्रोजन 14 स्टेबल है, 15 अनस्टेबल हो गया, ठीक है। क्लोरीन 35 37 की बात करो, 35 is 75%, 37 is 25%। तो within this region n by p ratio near to 1 is stable. Sodium 1123, 1124 is radioactive, ठीक है। तो lighter atoms के अंदर n by p ratio near to 1 is stable, whereas जैसे ही हम heavier की तरफ चलते चले जाते हैं n by p ratio more than 1 becomes stable and it keeps on steadily increasing, goes up to something like 1.6 near to uranium। ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, क्लियर। जब हम लाइटर न्यूक्लियस की बात करते हैं तो हम ये ऑब्जर्वेशन आराम से एक्सप्लेन कर देते हैं इससे, भाई 4% ज्यादा स्टेबल है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्वल टू ईच अदर स्टेबल होगा,
समझ आ रहा है? ठीक है, और हर स्पीशीज टुवर्ड्स स्टेबिलिटी मूव करना चाहती है, तो अगर जबरदस्ती आप न्यूट्रॉन बढ़ा दोगे तो वो एक न्यूट्रॉन को एक्सपेल करके इट विल ट्राई टू बी स्टेबल। ठीक है, ये n/p रेशियो नियर टू 1 लाने की कोशिश करेगा। हमारे क्लियर? अब हेवियर न्यूक्लियस में क्या होगा? न्यूट्रॉन ज्यादा है, ये दिख रहा है ना, मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर फेवरेबल। What benefit does it get with more number of neutrons? Be very clear, more number of neutrons make it is sacrificing this 4% stability. So why would it do it? करेगा वो तो, हाँ आगे। न्यूट्रॉन बढ़ने से बेनिफिट क्या होगा? सर प्रोटॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बढ़ेगा। अरे नहीं बढ़ाएंगे ना, नहीं बढ़ेंगे। देखो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें, अच्छा चलो हमने जब हम बात कर रहे हैं हेवियर एटम्स की तो उसमें प्रोटॉन तो बढ़ ही रहा है ना, ठीक है, प्रोटॉन कम तो नहीं हो रहे, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? सवाल ये है। सर प्रोटॉन बढ़ाने से जो रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन वो ज़्यादा हो जाएगा, वो नीचे वाले एलिमेंट्स हेवी हो गया। और सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है ना कि एक पार्टिकल को ऐड करेंगे तो वो पूरे सिस्टम को अफेक्ट करेगा। बिल्कुल और न्यूक्लियर फोर्सेस सबको अफेक्ट नहीं कर सकते, वो बस अपने एडजस्टेंट वालों को ही कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमें उसके रिस्पेक्ट में न्यूट्रॉन ज़्यादा डालने पड़ेंगे ताकि वो फोर्सेस ज़्यादा हो जाए। कौन से वेरिएशन? सर न्यूट्रॉन के बीच में चलो ये भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जितने आप न्यूट्रॉन डाल रहे हो उससे स्टेबिलिटी कैसे बढ़ रही है? सर क्योंकि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को बैलेंस करना है ना। बैलेंस कहाँ से कर रहे हो? सर ज़्यादा न्यूट्रॉन डालने से वैसे एक और रीजन बताता हूँ, न्यूट्रॉन रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। न्यूट्रॉन्स आर डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स ठीक है, दैट इज व्हाई हेवियर न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, क्लियर? तो हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं जो अभी हमने खिचड़ी बनाई है। कहीं पे हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं, कहीं पे हम डाइलेक्ट्रिक्स की बात कर रहे हैं। अब सोचो यूरेनियम 235 और 238 तीन न्यूट्रॉन कम है। यूरेनियम 233 भी होता है, but that's not naturally occurring, that is synthetically, and that again is fissionable material. fission होता है उसका। यूरेनियम 235 की तरह यूरेनियम 233 का भी होता है, उसकी हाफ लाइफ यूरेनियम 235 से भी कम है। समझ आ रही है बात? चेन लेंथ एंड अदर फैक्टर्स। अच्छा एक और चीज, जब भी कोई बॉन्ड बनता है, व्हाटएवर इट, वीक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, ऑलवेज एनर्जी इज रिलीज्ड आउट। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब न्यूक्लियर बॉन्ड बनेगा तब भी तो एनर्जी रिलीज होगी। अब इसके लिए अलग से टर्म यूज कर लेते हैं जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, द ओवरऑल एनर्जी रिलीज्ड when a nucleus is formed from its constituent nucleons is termed as nuclear binding energy. अब एक बहुत सिंपल सी बात है कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बॉन्ड एनर्जी कंपैरिजन में ह्यूज है, and because of this huge energy that is liberated out, we find
that the mass of the nucleus which is formed is always less than the total mass of the nucleons joining together. Okay? And therefore, there is always something called the mass effect. Okay? The difference between the total mass of the nucleon and the nucleus they form is termed as the mass effect. या एक काम करो, वीडियो देख के नोट्स बनाओगे क्या? सब ठीक है, समझ रहे हो ना? तो this difference in energy, the difference in mass is termed as the mass effect. This mass effect, delta M, that gets converted into energy to give the total binding energy. And the calculation simply tells us, कुछ छोटे-छोटे calculations हैं. 1 U, यानी कि the mass equivalent of 1 U, when it is completely converted into energy, this gives an energy of 931.5 million electron volts. So this much energy is liberated out when 1 U is converted into energy. Okay? Some people call it million electron volt, some people call it mega electron volt. Mega and million are same. Okay? You call it megabyte or you call it million byte. It means the same. Okay? तो ये कन्वर्शन है, तो इतनी एनर्जी लिबरेट हो जाती है. अच्छा, एक बात बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर है. अगर कोई आपसे पूछता है which has a higher binding energy, uranium 235 or iron 56, so what would be the answer? Very obviously uranium 235, क्योंकि उसमें बॉन्ड ज्यादा हैं. उसमें बॉन्ड ज्यादा हैं, तो जिसमें बॉन्ड ज्यादा होंगे, जिसके अंदर न्यूक्लियॉन ज्यादा होंगे, वेरी ऑब्वियसली उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी. ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी इज नॉट गिवन बाय बाइंडिंग एनर्जी, स्टेबिलिटी इज गिवन बाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. और वहां पे एक पेक्यूलियर ग्राफ आता है कि अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की बात करें, so this binding energy per nucleon increases, reaches a maximum and then it goes down, and this maximum is at iron 56. Iron nucleus is the most stable nucleus. ठीक है? शायद आपको थोड़ी सी बात पता होगी, तो मैं वो भी बता देता हूँ. आपने फ्यूजन का सीक्वेंस सुना है? हाइड्रोजन कन्वर्ट्स टू हीलियम, हीलियम कन्वर्ट्स टू कार्बन, carbon converts to iron, and iron does not convert to anything, it simply converts into neutron star. So we do have iron stars, we do have carbon stars, we do have helium stars and hydrogen stars, and then we have the neutron stars. So that's the sequence. Okay? This is the most stable nucleus. Iron 56 is the most stable nucleus. ठीक है? So this is what we call as binding energy per nucleon. ठीक है? Any confusions here? ठीक है? तो ये हमने इनकी बात binding energy. ठीक है? तो अब हमने यहाँ पर स्टेबिलिटीज की बात करते हैं. आइसोस्टर्स नहीं होते बेटा, आइसोस्ट्रक्चर्स हैं, वो सेम हाइब्रिडाइजेशन है, वो यहाँ नहीं है. अच्छा हाँ, एक छोटी सी लाइन. क्या? आइसोस्टर्स अलग है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में नहीं है. उसी टॉपिक के अंदर. अरे यार उस क्वेश्चन में दे रखा थ्योरी में. की थ्योरी होती है वैसे उसमें ले आना बताओ. ओके हाँ, एक छोटे से चीज भूल जाऊंगा, ध्यान रखो. There is something called a term called
packing fraction. Packing fraction. ठीक है? Packing fraction is atomic mass minus mass number. Atomic mass minus mass number divided by mass number into 10 raised to power 4. Now, this value could be negative, could be positive, could be 0. ठीक है? Whichever species has more negative value is considered more stable. ठीक है? This is not exactly the stability of everything. It is more to talk about the stability of relative isotopes. यानी कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप्स है ना, तो हर आइसोटोप का पैकिंग फ्रैक्शन निकाल दिया जाता है. सॉलिड स्टेट में भी वर्ड है, बट दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी. यहाँ पे हम पैकिंग फ्रैक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं. ठीक है? तो पैकिंग फ्रैक्शन इज मोर लाइक न्यूक्लियर केमिस्ट्री. ठीक है? तो जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव ये वैल्यू है, वो आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट उतना ज्यादा स्टेबल है. क्लियर? अच्छा, अब एक सिंपल सी बात अबाउट रेडियोएक्टिविटी. ये तो हमने सारी स्टेबिलिटी वगैरह के बारे में बात कर ली. अब बात करेंगे रेडियोएक्टिविटी के बारे में. रेडियोएक्टिविटी से होता क्या है? अगर हम रेडियोएक्टिविटी की बात करें तो नेचुरली 3 तरह की रेडियोएक्टिविटीज होती है. एक अल्फा एमिशन, दूसरा बीटा एमिशन और तीसरा गामा एमिशन. So these are the 3 particles or the 3 species emitted out in natural radioactivity. Here, alpha. Alpha is helium-4 nucleus. Emission of alpha decreases the atomic mass by 4 units and atomic number by 2 units. ठीक है? Alpha का emission N/P ratio को बढ़ा देता है. It releases 2 neutrons and 2 protons. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो फ्रैक्शन एक्चुअली इंक्रीज होगा. ठीक है? तो अल्फा का एमिशन N/P रेशियो को इंक्रीज करता है. ठीक है? क्लियर? बीटा एमिशन. बीटा इज एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर इज -1 and mass is 0. बीटा का एटॉमिक नंबर -1. तो इसका मतलब ये है कि जब बीटा एमिशन होता है तो वो न्यूक्लियस के अंदर एटॉमिक नंबर को 1 इंक्रीज कर देता है, 1 प्रोटॉन बढ़ा देता है. ठीक है? इलेक्ट्रॉन इज समथिंग लाइक डीके ऑफ न्यूट्रॉन टू गिव अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. ठीक है? तो दैट्स हाउ बीटा इज फॉर्म्ड. तो इससे N/P रेशियो डिक्रीज. Is it clear? ठीक है? तो बीटा एमिशन decreases the N/P ratio. Now, isn't it very obvious कि अगर मेरे पास H31 है, तो it is supposed to undergo beta decay, क्योंकि इसका N/P ratio जो होना चाहिए उससे ज्यादा है. So it will undergo the beta decay. Now, तो यहां पे बीटा डिके होगा. फाइन. अब एक और क्वेश्चन ये आता है, बीटा डीके समझ में आ गया. अल्फा डीके के अंदर इट्स गोइंग टू बी द N/P रेशियो वुड बी इंक्रीजिंग. ठीक है? ये तो हमने अल्फा बीटा डीके की बात की, दोनों से N/P रेशियो चेंज होता है. अब क्वेश्चन ये आता है
See, what about gamma radiations? Why are gamma radiations released out? वो क्यों रिलीज होगी? उनसे N/P रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता. और एक और बात, gamma radiations are called subsequent radiation or the dependent radiations. These are released out once alpha and beta radiations have been released. Subsequent radiation. Why are the gamma radiations released out? Any idea? देखो बेटा, हम कभी भी अगर किसी गन को फायर करने की बात करते हैं तो वी गेट समथिंग कॉल्ड अ रिकॉइल. ठीक है, अगर न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकलता है, अल्फा पार्टिकल मूविंग एट अ स्पीड ऑफ समथिंग अराउंड द 10% द स्पीड ऑफ लाइट, nearly 27,000 kilometers per second, then in that case it's going to give a recoil to the nucleus. The nucleus is going to move into an excited state, and when it moves back to its normal state, it will release the excess energy in the form of gamma radiations. So gamma radiations are termed as recoil energies. Yeah. So gamma radiations are recoil energies. They are emitted out from an excited nucleus, and they are emitted out after the emission of gamma or the alpha or beta radiations. बीटा में तो मास ही नहीं होता, तो उससे दिक्कत उसने का मास नहीं होता. इलेक्ट्रॉन है यार, मास तो है. क्यों नहीं होगा? हाँ, वो अलग होगी. तुम्हारी बात एक बात कंफर्म है कि बीटा के बाद की जो गामा रेडिएशन होगी उसकी एनर्जी कम होगी. अल्फा के बाद की गामा रेडिएशन में एनर्जी ज्यादा होगी. एग्री? नो कंफ्यूजन टू दैट. ठीक है, क्लियर? अब एक छोटा सा क्वेश्चन है. वी हैव सोडियम 2411, ठीक है, and we have sodium 2311. Sodium 2311 is more stable. In fact, 2311 is stable, whereas 2411 is radioactive. Clear? What kind of the radioactivity is sodium 2411 supposed to show? क्या निकलेगा इसमें? ये क्वेश्चन एक पेक्यूलियर क्वेश्चन है जिसमें कभी कभी स्टूडेंट्स ये बोल देते हैं न्यूट्रॉन एमिशन. I didn't ask you that to convert into sodium 23. I said to become stable. To become stable, it is going to release a beta particle and it's going to become magnesium 1220. ये सिर्फ ये बताने के लिए लिखा गया है कि इसका N/P रेशियो नियर टू 1 स्टेबल. ठीक है, अब मैं आपको एक और छोटी सी चीज बता देता हूं. द के इलेक्ट्रॉन कैप्चर. के इलेक्ट्रॉन कैप्चर एक बड़ा पेक्यूलियर सा फिनोमेनन है कि कई बार ऐसा होता है कि एक एटम के अंदर, एक न्यूक्लियस के अंदर N/P रेशियो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता है. Some very unstable ratio becomes. अब उसके अंदर कुछ एक ऑप्शंस हैं एटम के पास. या तो इट इज गोइंग टू रिलीज आउट अ पॉजिट्रॉन. पॉजिट्रॉन है तो प्रोटॉन कम हो जाएगा, N/P रेशियो बढ़ जाएगा. ठीक है, क्लियर? दूसरा क्या हो सकता है? जैसे ये न्यूक्लियस है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, दिस इज के शेल. अब एक बात का ख्याल रखना, इलेक्ट्रॉन इतनी दूर नहीं होता. इलेक्ट्रॉन इज अ वेव. दैट वेव एक्चुअली इज लाइक दिस. यानी कि वो न्यूक्लियस के पास से निकल रहा है. होता ये है कि न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है. खत्म. इलेक्ट्रॉन गया था, आया ही गायब हो गया, एंड सडनली ये शेल खाली हो जाता है. इस शेल में एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया. ये हुआ के इलेक्ट्रॉन कैप्चर. कैप्चर तो इतना ही था, लेकिन इसके आगे कुछ आउटकम्स होते हैं. इट्स समथिंग लाइक कि आपके पास एक बड़ी सी बिल्डिंग है 2 या 3 फ्लोर की, एंड सडनली फर्स्ट फ्लोर गायब हो गया. अब फर्स्ट फ्लोर गायब हो गया तो क्या होगा? दोनों का नीचे आ जाएगा. इन द सेम मैनर इस हायर शेल से इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है. दिस इज अ लैमन सीरीज. लैमन सीरीज की सबसे लो एनर्जी लाइन जो होती है ना,
वो भी बाकी किसी भी एटम में से, किसी भी शेल में से पूरे इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने के लिए काफी है। ठीक है, और यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, वी आर टॉकिंग अबाउट हेवियर एटम्स। तो यहाँ पे जो निकलते हैं वो एक्सरेज निकलती है। वो एक्सरेज जब निकलती हैं तो यहाँ पे इस शेल के किसी इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, पता चला गया। पहले में तो एक खाली हुआ था, दूसरे में 2 खाली हो जाते हैं, तीसरे में 4 खाली हो जाते हैं, और इस तरीके से पता चलता है आउटर मोस्ट शेल ही गायब हो गया। शेल गायब हो गया वो एक चीज है, एक्सरेज निकली वो एक चीज है, लेकिन सोचो हर एटम में से, हर एटम में से अगर एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, सिर्फ एक, जबकि एक से ज्यादा निकल गए, तो सोच रहे हो 1 मोल या 2 मोल में से कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? And it will be something like a few lakh coulombs instantly. It creates a huge electromagnetic pulse, इतनी strong कि उतने पल्स में सारी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन या फिजन रिएक्शन हुआ है उसका पता इसी से चलता है। वो सैटेलाइट जो कहती है अरे कुछ गड़बड़ हुई है, ऐसे पता चलता है कि कहीं पे अंडरग्राउंड भी करोगे, कहीं पे भी करोगे, ये पल्स डिटेक्ट हो जाती है। This is what we call as K electron capture. ठीक है?